کورونا ایک بار پھر معیشت اور تعلیم کو متاثر کرنے لگا۔ این سی او سی نے کورونا کی زیادہ شرح والے علاقوں میں تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صوبائی تعلیم اور صحت کے محکمے تعلیمی ادارے بند کرنے کے لیے کیسز کی شرح کا تعین کریں گے۔ این سی او سی کے مطابق آئندہ 2 ہفتوں تک تعلیمی اداروں میں بڑے پیمانے پر کورونا ٹیسٹنگ ہوئی۔ جہاں کیسز زیادہ ہیں وہاں 1 ہفتے کے لیے تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے حتمی فیصلہ صوبائی انتظامیہ ضلعی صحت اور تعلیمی حکام کی مشاورت سے کرے گی۔ 12 سال سے زائد عمر کے طلبہ کی 100% ویکسینیشن بھی یقینی بنائی جائے گی۔ دوسرے سسٹم کی بات کریں، صدارتی نظام سے متعلق سوشل میڈیا پر شروع ہونے والے بحث اقتدار کے ایوانوں تک پہنچی ہے۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کے احسن اقبال اور وفاقی وزیر حماد اظہر آمنے سامنے آئے۔ احسن اقبال نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ صدارتی نظام کو کسی صورت قبول نہیں کرے۔ حماد اظہر بولے، ضیاء دور میں پروان چڑھنے والے ہمیں پڑھانے کی کوشش نہ کریں، جبکہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے واضح کیا کہ حکومتی سطح پر صدارتی نظام کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ پھر یہ ٹرینڈز کون چلا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، صورتحال تاحال واضح نہیں ہو رہی۔ کیا ملک میں نظام حکومت تبدیل کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں؟ کیا ایک بار پھر صدارتی نظام لانے کا پلان بن رہا ہے؟ کئی روز سے سوشل میڈیا پر صدارتی نظام کی حمایت میں ٹرینڈز ٹاپ پر۔ نظام کی تبدیلی کی بحث پر اپوزیشن کا تشویش کا اظہار، حکومت کا بھی صدارتی نظام کی کھل کر حمایت سے انکار۔ سوشل میڈیا سے شروع ہونے والی بحث کی گونج اقتدار کے ایوانوں میں بھی سنائی دینے لگی۔ نون لیگ کا صدارتی نظام کی ڈٹ کر مخالفت کرنے کا اعلان۔ پتہ نہیں کون پاکستان میں بار بار یہ بحثیں چھیڑ دیتا ہے کہ صدارتی نظام لے کر آنا چاہیے، پارلیمانی نظام کے اندر یہ ہو گیا ہے۔ اس ملک کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ آئین کی سربلندی کا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے احسن اقبال کو تانا دیا۔ آپا نثار فاطمہ کا بیٹا آج صدارتی نظام پر تنقید کر رہا ہے، انہیں یاد دلاتے رہیں گے کہ یہ ضیاء دور کی پیداوار ہے۔ دوسری جانب لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے کہا، حکومتی سطح پر صدارتی نظام کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ کسی بھی جانب سے حکومتی سطح کے اوپر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس آئین کو تبدیل کرنے کا ایک ہی طریقہ موجود ہے، اور وہ طریقہ جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئینی ترامیم۔ ایسا کوئی منصوبہ جو ہے وہ نہ حکومت یا حکومت کے جو غیر منتخب شدہ لوگ جنہوں نے آپ کہا، جن میں سے میں بھی آتا ہوں، ہمارے تو ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیونکہ جبکہ ہیش ٹیگ صدارتی نظام صدر عمران خان جمعے کو ٹاپ ٹرینڈ رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی جانب سے ٹرینڈ کی حمایت میں ٹویٹ، لیکن پی ٹی آئی رہنماؤں کا کھل کر حمایت سے گریز، ساتھ چھوٹے بھی نہیں، نظر آتے بھی نہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ مہم کون چلا رہا ہے، صورتحال واضح ہونے کا سب کو انتظار ہے۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کے احسن اقبال نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کے تابڑ توڑ حملوں کا تنہا مقابلہ کیا۔ شاہ صاحب نے جب کہا کہ ایک چٹھی بلاول جی کے نام لکھی ہے، حال دل پڑھ لیں، اس پر پہلے پی پی اراکین نے احتجاج کیا۔ پھر احسن اقبال بولے، شاہ صاحب نے آج بطور وزیر اعظم اپنی رونمائی کر دی۔ احسن اقبال نے معیشت پر حماد اظہر کو ٹی وی پر مناظرے کا چیلنج کیا، جس پر حماد اظہر نے جواب دیا کہ ٹی وی نہیں، پارلیمنٹ میں مناظرہ کر لیں۔ احسن اقبال نے ماضی کے آمروں کا ذکر کیا تو حماد اظہر نے کہا کہ ہمیں 7 کلاس کا مطالعہ پاکستان نہ پڑھوائیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ جنرل ضیاء کے دور کا جواب کون دے گا تو حماد اظہر بولے، جنرل ضیاء الحق نون لیگ کے ابو تھے، وہی ان کے دور کا جواب دیں گے۔ چٹھی سید جی کے نام لکھی ہے، بلاول بھٹو کے نام لکھی ہے۔ وزیر خارجہ صاحب اپنے کام کے علاوہ سب کا دوسروں کے حصے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ تھینک یو، بیٹھ جاؤ بھائی۔ انٹرویو دینا چاہ رہے تھے کسی کو، عمران خان کے بعد میں بھی ہوں، میرے پہ توجہ کر لیں، ٹی وی کے اوپر آئیں، لائیو مذاکرہ کریں۔ چیلنج کیا ہے؟ ٹی وی کی کیا ضرورت ہے، پارلیمان سب سے بڑا فورم ہے، میں یہاں پہ جواب دینا چاہتا ہوں ان کا۔ جتنا صدارتی نظام پاکستان نے بھگتا ہے، شاید اس خطے میں کسی اور ملک نے نہیں بھگتا ہے۔ 7ویں جماعت کی پاکستان اسٹڈیز کی کتاب کے رٹے لگا کے سنائے جاتے ہیں۔ معیشت کا حجم
सुकेड़ दिया है। जवाब सुनने का हौसला नहीं है चैलेंज करने का। 2 पॉइजन पिल्स दी हैं। मुल्क को दिवालिया करके कर्जा लेके इन्होंने 5.4% ग्रोथ हासिल की। पाकिस्तान को कर्जों के जाल में धकेल दिया है। हमने इनका पाकिस्तान स्टडीज का लेक्चर सुना है। एक से एक बड़ा जो फेल वजीर है उसका लेक्चर ना हमें सुनाया करें। पाकिस्तान स्टडीज का लेक्चर नहीं है। जियाउल हक के 11 साल सदारती निजाम, ये जो बाप कहते थे जनरल जियाउल हक को, वो जवाब देंगे जनरल जियाउल हक की रजीम का। फिर जियाउल हक साहब का मार्शल लॉ भुगता। इन्होंने जो पाकिस्तान स्टडीज का लेक्चर दिया, सदारती निजामों ने क्या दिया है? नाते पढ़ते रहे उनके फंक्शंस के ऊपर। जनरल मुशर्रफ के 9 साल सदारती निजाम। खुदा का वास्ते अपने बुजुर्गों की के जो किए हैं उनसे भी इतने साफ सुथरे तरीके से हाथ ना धोए। कराची में तूफानी हवाओं का राज है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर तेज हवाओं की झक्कड़ की लपेट में आ गया। दीवारें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से एक बच्चा फरमान जाँ बहक हुआ। सुरजानी टाउन के इलाके कनीस फातिमा सोसाइटी में दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 7 साल बच्चा अब्दुल रहमान जान से गया। कराची तेज हवाओं की लपेट में, कई जगह दीवारें गिर गयी। मुख्तलिफ वाकयात में 5 अफराद जाबहक जबकि 3 शहरी जख्मी हुए। गुलबाई पुल के करीब जेर तामीर इमारत की दीवार गिरी, कीमती इंसानी जानों का ज़िया। महकमा मौसमियात ने बताया शहर कायद में मगरबी सिम से 45 से 54 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। यही इसी तरह विंडी और डस्टी वेदर रहेगा आज रात मिड नाइट तक एटलीस्ट ये इस तरह से वक्फे से चलेगी। तेज हवा की वजह से औरंगी टाउन में बिजली का खंभा गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। पापोश नगर में वाक़ सरकारी स्कूल की दीवारें भी गिर गईं। वेस्ट बलूचिस्तान और ईरान का जो एरिया है वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, तो उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने तूफानी हवाओं के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है, जबकि शहर में तेज हवाएं चलने का अलर्ट भी जारी कर दिया। सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज़, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आकर रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया, जहां उन्हें मौजूदा सलामती सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नए इंतजाम शुदा अजला में तरक्याती कामों और पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के अमल के बारे में बताया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कोर हेडक्वार्टर्स आमद पर कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। लाहौर अनारकली धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ, मुबैना दहशतगर्दों की तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में जाए वकुआ के करीब रेकी करते 2 मुबैना सहूलतकारों को देखा जा सकता है। तहकीकात से ये बात सामने आई है कि बारूदी मवाद बैग में लाया गया। दहशतगर्द लोहारी चौक से दाखिल हुआ। अहम शवाहिद और कैमरों की मदद से जांच पड़ताल की जा रही है। CTD ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। धमाके में जहां वक्त रमजान की नमाज जनाजा मुरीद के में अदा कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अनारकली बम धमाके में जख्मी अफराद की अयादत के लिए मियो हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने जख्मियों की मिजाज पुरसी किए और जख्मियों से इलाज, मुआलजे और दीगर उमूर के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने शिराज नामी नौजवान के 5 कामयाब ऑपरेशन होने पर डॉक्टर्स को शाबाश दी और कमिश्नर लाहौर को शिराज की माली इमदाद की हिदायत भी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जख्मियों को इलाज, मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उस्मान बुज़दार जख्मियों की माली इमदाद के हवाले से सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिए बगैर ही चले गए। किसी किस्म की तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो केस है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसके बाद इनको पूरी हम कंपनसेशन। आपने इनके लिए कोई इमदाद का ऐलान किया है? इमदाद का कोई ऐलान किया है? जी बिल्कुल। कितनी इमदाद? जी जी सीएम साहब कितना इमदाद का ऐलान कर रहे हैं? सर इमदाद बता दें। सीएम साहब इमदाद कितनी? मरी में जब लोग मर रहे थे तो वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर कहाँ था? वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का हेलीकॉप्टर कहाँ गायब था? हमजा शहबाज ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। मीडिया टॉक में कहा कि मुल्क में सानेहात हो रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं सब ठीक है, 15 अफसर मुअत्तल करके लवाहिकीन के साथ मजाक किया गया। उस्मान बुज़दार ऐसे साने मरी की रिपोर्ट ले रहे थे जैसे 3 मारा है।
इमरान नियाजी साहब सुन ले कान खोलकर, गुलजार साहब सुन ले कान खोलकर कि हम आपको इस साने पर मिट्टी डालने नहीं देंगे। वसीम अकरम प्लस बकौल इमरान खान तंजीम साजी का इजलास कर रहे थे। इमरान नियाजी साहब जब लोग पुकार रहे थे कि हमारे प्यारे मर रहे हैं, तो वो हेलीकॉप्टर कहाँ था जो रोज आपको बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस का सफर कराता है। गुलजार साहब कोरोना से और डेंगू से मर रहे थे, आप हेलीकॉप्टर के ऊपर डेंगू और कोरोना को तलाश करे थे। वो हेलीकॉप्टर कहाँ था जब लोग को अपनी जानों के लाले पड़े थे। उस्मान गुलजार साहब आप 15 लाख लोग भी मुअत्तल कर दे, तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक असल सानिया मरी के जिम्मेदारों का तयन नहीं हो जाता। किसान पुकार उठा है, रुल गया है। ये माफिया किस बला का नाम है जो वज़ीर हाउस में वो बला बैठी है इर्द गिर्द आपके। नियाजी साहब जाओ देखो, बनी गाला से नीचे उतर के देखो। वही शेख रशीद साहब उस दिन कहते हैं कि सब ठीक है। वेलकम बैक। मौलाना फजलुर रहमान अकेले इस्लामाबाद ना आए बल्कि बिलावल को भी साथ लाएं। वजीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन को मशवरा, कहते हैं अपोजिशन अपनी तवानाइयाँ ज़ाया ना करे और ना ही पुलिस की तवानाइयाँ ज़ाया होने दे। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान सरहद पार से दरअंदाजी की रोकथाम के लिए सरहद पर जियो फेंसिंग का अमल जारी है। अफगान सरहद पर महज 20 किलोमीटर जबकि ईरान बॉर्डर पर 200 किलोमीटर पर जियो फेंसिंग का काम बाकी है। आप शौक से आएँ, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आएँ। क्यों अपनी एनर्जियों को ज़ाया करें और पुलिस की एनर्जी को भी ज़ाया करें। सिर्फ 20 किलोमीटर की जो है फेंसिंग जो है वो रह गई है। 2680 किलोमीटर पूरा हो चुका है और उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको हर सूरत में मुकम्मल करेंगे। जो ईरान बॉर्डर है उसमें 200 किलोमीटर रहती है बलूचिस्तान पे। चिट्ठी बिलावल जी के नाम लिखी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए ये अल्फाज कहे तो पीपी के रुकने असम्बली रफ़ीउल्लाह गुस्से में आ गए। ताहम उन्हें चुप कराते हुए स्पीकर असद कैसर का सब्र भी जवाब दे गया और उन्होंने रफ़ीउल्लाह को डांट पिला दी। बैठ जाए रफ़ीउल्लाह, मुझे तरीका आता है फिर बैठने के लिए। रफ़ीउल्लाह हाथ से ना बढ़े प्लीज, आप बैठे। मैं निकालूंगा आपकी बात को आप बैठ जाए, आपको कहता हूं बैठ जाओ। सिक्योरिटी वालों को लेकर आओ। लाड़काना डिवीजन के तमाम अजला से ट्रैक्टर ट्रालियों पर आए काश्तकार और पार्टी कारकुनों ने लाड़काना के मरी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा किसान बेहिस गूंगी बहरी हुकूमत के खिलाफ निकल आए हैं, हम इस हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक देंगे। पीटीआई की हुकूमत नहूसत वाली है, जब से हुकूमत आई है कभी आटा कभी चीनी कभी पेट्रोल का बहरान है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर लाड़काना में काश्तकारों का ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च। लाड़काना डिवीजन के तमाम अजला से काश्तकारों और कारकुनान की शिरकत। मरी चौक पर धरना। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भी धरने में शिरकत। बैल गाड़ी पर बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन से खिताब पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बांग्लादेश का टका अब 2 रुपए 10 पैसे का 1 टका है। अब हमें इस काबिल भी नहीं रहे कि उसको टके वाला कहें। उधर पंजाब के शहर ओकाड़ा में भी पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम जिना पार्क में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की क़यादत में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च के तहत एहतजाज मुजाहरा किया गया। मुराद अली शाह आसिफ जरदारी का मुंशी चोरी के पैसे गिनता है, आसिफ जरदारी से लूट मार का हिसाब लेंगे। विफाकी वजीर अली जैदी का लाड़काना में जलसे से खिताब, कहते हैं आपस के इख्तिलाफात भुलाकर बड़े डाकुओं के साथ लड़ना है। इनकलाब लाड़काना से शुरू होगा। सिंध में होने वाले हर 2 नंबर काम के पीछे जरदारी का हाथ होता है। सारी जमीन वो उसका मुंशी है, उसको सीएम बना दिया, तुम पैसे गिनता चोरी के। बोला भाई तू बड़ा अच्छा गिनने वाला, तू सीएम है। थोड़ी सी महंगाई इसलिए कि पूरी दुनिया में महंगाई हो गई, लेकिन ज्यादा इसलिए कि जरदारी के 2 पांव वाले चूहे आपकी गंदम खा जाते हैं। 2023 के इलेक्शन में इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का जो आज की पीपल्स पार्टी है इसका सिंध से हम खात्मा कर देंगे। मुल्क भर की तरह लाहौर में हमाद अजहर के अपने हलके की आवाम भी गैस की बंदिश से नाला। हमाद अजहर के हलके में गैस की पुरानी और नई पाइपलाइंस के लिए कई माह से खुदाई मुकम्मल, लेकिन सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस की जानिब से लाइन्स नहीं डाली गई। अवाम सरापा एहतजाज बन गए हैं। शेख उमर दराज। मुल्क भर में अवाम शदीद सर्दी में गैस की बंदिश से परेशान हैं और महंगे LPG सिलेंडर या दीगर मुतबादिल तवानाई का ज़राए हासिल करने पर मजबूर।
वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर के लाहौर में हल्का एन 126 में भी हालात ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। पुरानी पाइपलाइंस में गैस तो आती नहीं। जिन इलाकों में पाइपलाइंस बहुत पुरानी हो चुकी हैं, वहाँ नई पाइपलाइंस भी अरसा दराज से नहीं बिछाई जा रही। हमारी गैस नहीं आ रही घर की, हम गैस सिलेंडरों पे जला जला के तंग आ गए। हम यहाँ पे बहुत तंग है इस गैस की वजह से, क्योंकि रोज ही लोग सिलेंडर भरवा के हम खुद भी थक गए हैं। LPG गैस भरवा के थक गए। रेट देखें दिन ब दिन कहाँ जा रहे हैं। हम सिलेंडर लेके कभी इधर कभी उधर फिर रहे हैं। अहले इलाका का कहना था कि हमाद अजहर वोट लेने के बाद कभी भी यहाँ वापस नहीं आए। LPG के लिए भागते हैं, गैस है ही नहीं। इसके लिए MD सुई गैस का जो है ना घेराव करेंगे, इससे आगे हमारे पास और कोई हल नहीं है। हमाद अजहर साहब इन्हीं गलियों से रास्ता इस्लामाबाद का आता है, थोड़ा सा उन गलियों को देख ले। उन गलियों के लिए जिन्होंने आपको वोट दे के वहाँ पे भेजा है। हमाद अजहर के हल्के की आवाम का कहना है अगर गैस का मंसूबा जल्द मुकम्मल नहीं किया गया तो SNGPL के दफ्तर का घेराव करेंगे। कैमरामैन हारिस आरिफ के साथ शेख उमर दराज, DO न्यूज़, लाहौर। लीगल फोरम कश्मीर ने लंदन में कायम कानूनी फॉर्म स्टोक वाइट की बरतानवी पुलिस को जंगी जराइम के तहत भारतीय आर्मी चीफ, वज़ीर दाखिला और दीगर 8 हुकाम के खिलाफ कार्रवाई के लिए जमा कराया गया डोजियर जारी कर दिया है। लीगल फोरम कश्मीर के सरबराह नासिर कादरी ने कहा है आलमी बरादरी और इदारे भारतीय आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ जंगी जराइम के तहत कार्रवाई करें। कराची में सिंध असम्बली के बाहर तेज हवाओं और गर्दो गुबार के तूफान के बावजूद जमात इस्लामी का धरना 22वें रोज भी जारी। धरने में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जमात इस्लामी इतवार 23 जनवरी को एक बड़ा जलसा आम करेगी, जिसे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सराजुल हक खसूसी खिताब करेंगे। देखिए, सिंध की कानून साज असेंबली के सामने जमात इस्लामी का ये धरना 22 रोज से जारी है। जमात इस्लामी के कारकुनान बल्दियाती कानून के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और उनके साथ ये ज़ारे यकजहती के लिए मुख्तलिफ वफूद की आमद का सिलसिला भी जारी है। आज शाम में स्टील मिल का एक वफ्द आया था जो इन्होंने एहतजाज भी किया यहाँ पर, और जो धरने के शुरका हैं उनके साथ जो है वो ज़ारे यकजहती किया। यहाँ पर अब कुछ देर के बाद हाफिज नईमुर रहमान जो कि जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, वो जो है वो खिताब भी करेंगे और मुस्तकबिल का लायामल भी देंगे। और ये तकरीबन 22 रोज से ये धरना जमात इस्लामी का सिंध असेंबली बिल्डिंग के सामने जारी है। जी, मुल्क में सर्दी की शदीद लहर बरकरार, बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। पहाड़ों पर एक बार फिर रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी है। उधर मरी में एक बार फिर शदीद बर्फबारी का सिलसिला, सयाहों की बड़ी तादाद मरी का रुख करने लगी है। इंतजामात और बर्फबारी से मुतालिक मजीद अपडेट क्या है, जानते अपने नुमाइंदे ताज बुखारी से। जी ताज। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं GPO चौक मरी में, जहाँ पे अभी जो है वो लाइव बर्फबारी का सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका है और स्याहों की भी अच्छी खासी तादाद हो गई है जो इस वक्त मरी में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है एक फैमिली, उनसे बात करते हैं। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत इंजॉय हो रहा है। मरी में बर्फबारी शुरू हो गया अभी, आप लोग भी आए, इंजॉय करें, मज़े करो। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं। आप लोग से भी है कि आप लोग भी आए, मज़े करें। इनका कहना ये है कि हम कराची से आए हैं और बहुत खूबसूरत जो है वो मौसम है। स्याहों की भी अच्छी खासी तादाद इस वक्त मरी में मौजूद है और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रही है। जी